Continue. Coordinates of vertex A of the triangle ABC are given and perpendicular bisector of side AC. Then the coordinates of C can be okay. Perpendicular bisector का तुम्हें लाइन दी है और तुम्हें A दिया हुआ है. Then coordinates of C can be. So we know कि like yeah wait, this is not how it should be. 1,2. This is weird. Why is this like I don't get it. तुम्हें सिर्फ एक मतलब A दिया है, तुम्हें एक लाइन दी हुई है, दैट्स ऑल यू नो. तो हमें पता है कि BC जो है वो ऐसा कुछ तो भी है, इस पर रिफ्लेक्शन वगैरह आएगा. आई गेट इट. बट ये BC मैं कैसा भी रख सकता हूँ, राइट? या तो ये कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट इनमें से कोई भी वैल्यू चल सकती है. दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. बस मैं ग्राफ करने का ट्राई करूँ इसको. सो यू हैव ओके -1 लाइक ये चीज़ ओके ये काम कर रही है एंड दिस शुड बी द थिंग. ओके ऐसा कुछ तो भी है और 1,2 समवेयर ओवर देयर यहाँ पे ये पॉइंट है, राइट? तुम्हें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है. सो यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स लाइक दिस जो कि रिफ्लेक्शन से दूसरे के, और तुम ये ABC ट्राइंगल हमेशा बना सकते हो. सो अच्छा साइड AC राइट, साइड AC मुझे BC लग रहा था अभी तक. फाइन, फिर तो ठीक है. फिर हमें ये बाइसेक्टर दिया हुआ है और हमें A भी पता है, राइट? वी कैन डू दिस. इसका जो रिफ्लेक्शन रहेगा A का, दैट विल बी C बेसिकली. सो हाउ डू यू फाइंड दैट? वेल डेल्टा x मतलब कि x-1 अपॉन A, इन दिस केस दैट्स 2 इक्वल टू डेल्टा y-2 अपॉन 3 इक्वल टू. सो ये चीज़ I mean negative of ये 2 into 1 plus 3 into 2 plus 5 upon 2 square plus 3 square. Yeah, I think ये formula correct है. So x-1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 equal to yeah, I think okay equal to. So ये चीज़ क्या है? Wait, negative of that. Wait. Plus 1/2 ये रिफ्लेक्शन के लिए कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर. सो डेल्टा x जो है दैट इज़ लाइक 2 times that vector, right? So it should be 2 over here. Yeah, this should be 2 times that vector. That makes sense. Okay, so ये चीज़ और अब इसको सब कैलकुलेट करना है, right? So -2 of 2 into 1 is just 2 into plus 3 into 2 6. So 6 plus 5 11 plus 2 is 13 upon 4 plus 9 which is also 13. So it's just -2. So x equal to 1 plus 2 into -2 which is -4. So 1 minus 4, or y equal to 2 minus 6, right? So this should be -3 और ये हो जाएगा -4. So -3 comma -4 is the point. Okay, next question. ये क्या हो गया इसका? Next question. If both the roots of this thing are greater than 1, then the set of values of p is. इसके दोनों रूट greater than 1 है. The set of values of p is yeah, so it's 2 times of p minus 7x minus p square. This is like minus of 2p minus 14. I get it. How would you figure out 2p minus 14? का मल्टीप्लीकेशन p स्क्वायर हो, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा. सो इंस्टेड यू विल हैव टू डू दिस थिंग कि अल्फा प्लस बीटा इज 2 into p minus 7 which is obviously bigger than 2. So you have p minus 7 is bigger than 2 and negative p squared is for some reason it's like दोनों 1 से बड़े हैं. That means I don't get it, but ये तो impossible है क्योंकि negative p squared, oh sorry, yeah negative p squared, that's how it should be. So alpha beta is just negative p squared, but दोनों 1 से बड़े हैं तो
ये इम्पॉसिबल है, नन, इट हैज़ नो वैल्यू। इनफैक्ट अगर यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर था तो फिर मैं कुछ सोच सकता था, बट नहीं, ये बिगर देन 1 होना चाहिए, सॉरी। सो दैट मीन्स p इज़ बिगर देन 8, आई नो, none is the correct answer. Next question. Yeah, if a and b are two square, yeah, that's how it should be. If a and b are two square non-zero matrices and ab equal to identity matrix, okay, square non-zero, any of the following is necessarily incorrect. ba equal to I, no non-zero matrices है, नेसेसरीली इनकरेक्ट, मतलब बी ए इक्वल टू आई हो सकता है ए जो है वो बी इनवर्स हो, सो पॉसिबिलिटी है, या बी एंड सी भी हो सकते हैं, डी है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, मतलब ये एक बचा हुआ है, सो ये एक इनकरेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा क्यों है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी इनकरेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, वाई शुड दिस बी? सो लाइक ए बी इक्वल टू आई, राइट? हाँ, non-zero matrices, fine, square, oh come on, think about this thing. अगर a squared equal to b है then what? Then it's like aab equal to b square, right? But ab equal to identity matrix, so a equal to b square हो जाएगा. So a equal to b square and a squared equal to b, that means b power 4 equal to b and a power 4 equal to a. या तो इसका मतलब है कि बी क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर ये ज़ीरो है, ओके, ये नहीं चाहिए मुझे, दिस डजंट मेक सेंस, ये क्यों नेसेसरीली इनकरेक्ट होना चाहिए? क्या ऐसा सच में हो ही नहीं सकता कि, या लाइक वाई? हो सकता है ना कि बी क्यूब आई है और ए क्यूब आई, मतलब ए और बी दोनों को तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लो, ऑब्वियसली ये पॉसिबल है, आई डोंट गेट इट, व्हाई इज दिस नेसेसरली इनकरेक्ट? तुम्हें ऐसा बोला है क्या कि ए और बी डिस्टिंक्ट होने चाहिए? आई डोंट नो यार, नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस नॉन ज़ीरो होते हैं, सो नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे हो सकते हैं, और इन्होंने पूछा नेसेसरीली इनकरेक्ट, सो दिस इज़ नॉट नेसेसरीली इनकरेक्ट. या लाइक ए और बी दोनों को तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, ये ऑब्वियसली होगा, सो दिस इज़ वियर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ फ्रॉम रियल टू 0 to π/6 be defined as this thing, then f of x is, okay, so at least we know कि 0 is less than, राइट, इसकी जो भी रेंज रहेगी एटलीस्ट वो इसमें कंटेंट तो रहेगी, सो वी कैन डेफिनेटली से 0 इज़ लेस देन साइन इनवर्स ऑफ, ओ अच्छा, तो अब अपने को एक्चुअली पहले रेंज ढूंढनी है, फिर देखना है कि वो किस टाइप का फंक्शन है. अच्छा, पहले इंजेक्टिविटी की बात करो कि अगर तुम्हारे पास में दो ऐसे वैल्यूज़ आ गए ए और बी, सच दैट दिस इज हैपनिंग, 4x² - 12x + 17, ऑफकोर्स ये जो चीज़ है ये मैनी टू वन टाइप ऑफ फंक्शन है, तो फिर ये पूरा फंक्शन भी मैनी टू वन हो जाएगा, सो ये इंजेक्टिव तो नहीं है एटलीस्ट. ओके कूल. अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होती है, सो ये लाइक 0 हो जाएगा, बट मिनिमम के लिए 1/x² - 3x + 17/4, विच इज़ लाइक आई डोंट नो, 17/4, ठीक है, ओके. सो इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी व्हेन x इक्वल टू 3/2, सो 1/3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 - 9/2
प्लस 17/4 मतलब कि 1/17/4 माइनस 9/4 यानी कि 1/17 माइनस 9 इज जस्ट 8, सो 8/4 यानी कि 2. सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, या लाइक इट्स लाइक साइन इनवर्स ऑफ कुछ तो भी जो 0 से 1/2 की रेंज में बैठता है लाइक, और उसका तुम साइन इनवर्स निकाल रहे हो. सो ये 0 to 30 डिग्री, 30 डिग्री ने π/6. या करेक्ट. So this is in fact surjective, but it's not injective. Next question. One value of k for which the area of the region bound by the curve, the straight line x equal to 1 and x equal to k, and the x-axis is equal to 16/3. One value of k for which the area of the region bound by the curve 8x squared minus x power 5. The straight line x equal to 1. Okay, cool. And x equal to k, and the x-axis is equal to 16/3. Basically integration from 1 to k of ये पूरी चीज़ 8x square minus x power 5 dx is equal to 16/3, और एटलीस्ट इसका मॉड जो है वो 16/3 है. फिलहाल के लिए अपन बस ही कैलकुलेट करते हैं. तो ऐसी कौन सी k की वैल्यू है. सो दिस विल बी लाइक 8x क्यूब, सो 8 into k क्यूब माइनस 1/3. ओके, माइनस x पावर 5 के लिए k पावर 6 लगेगा. सो k पावर 6 माइनस 1/6, राइट. एंड दिस विल बी, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूँ, दिस विल बी व्हाट 16 into k क्यूब माइनस 1 minus, so we can write this thing as k cube minus 1 into k cube plus 1. So this will be k cube minus 1/6, upon 6 into, this will be 16 minus all that stuff, so minus k cube minus 1, and this is k cube minus 1/6 into 15 minus k cube. There you go, right. And this thing, इसका जो mod है that is 16/3. सो ऐसी कौन सी एक k की वैल्यू, जस्ट ऑप्शंस को चेक करो ना. सो -1 विल गिव अस लाइक -2 into 16/6, विच, जिसका मुझे सिर्फ मॉड देखना है. सो लाइक 8 3, looks right, 16/3. Yeah, so this actually works. 3, when you put 3 over there, you just get 27 minus 1, which is 26 into 15 minus 27, so 27 minus 15, that will be 12, I think. Yeah, upon 6. So that is way too big. तो ये तो नहीं है. So अपने को एक वैल्यू मिल गई ना, काफ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If this thing equal to 5 pi squared by 2, then the value of this thing is equal to sin inverse of a squared plus cosine inverse of b squared plus sec inverse of c squared. ठीक है, ये चीज़ 5 पाई स्क्वायर बाई 2. अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ a स्क्वायर की π/2 का स्क्वायर, राइट. सो मैक्सिमम वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड की क्या हो सकती है, π/2 स्क्वायर यानी कि π²/4 प्लस कोसाइन इनवर्स p, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है π² प्लस सेक इनवर्स ऑफ c1. सेक इनवर्स 0 to π में जाता है, सो दिस π² इज मैक्सिमम वैल्यू प्लस, राइट. सो प्लस cosec inverse of t, negative π/2 से π/2, so π²/4, and this will be π²/2 plus 2 pi squared, which is 5 pi squared by 2, as I guessed. So yeah, ये सारी अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ पर है, मतलब कि a इक्वल टू 1 या फिर -1, a इक्वल टू +-1 बोल सकते हैं, और b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1, एंड d इक्वल टू +-1. ओके, कूल. This is first thing. Okay, next you have sin inverse of a, right. What is this equal to? So yeah, like वो maximum values पर है, so just have π²/4 minus π². Sec inverse of c still is just π² minus π²/4, I think. So ये तो सब कुछ कट जाएगा, it's just 0. Yeah, looks right. Okay, cool. Next question. Let g of x be equal to this thing,
एन आर इंटीजर्स, ये वही वैल्यूज थी ना सारी की सारी, हाँ सारी सारी सेम थी. जी ऑफ एक्स इज दिस थिंग, m and n are integers, x is between 0 to 2, okay cool. And let p be the left hand derivative of x minus 1 at x equal to 1. Okay, mod of x minus 1 at x equal to 1, उसका left hand derivative. So when x is less than 1, this thing is just negative, right? x minus 1 is just negative, so this will be 1 minus x. So left hand derivative क्या देगा अपने को? -1. So that means p is just -1. इतना सब बोला और yeah, limit x tends to 1 of g of x is p, then makes sense. So limit x tends to 1, ये चीज़ -1 है. एक काम करो ना, x equal to 1 plus h इसमें पुट कर दो. So this will be g of x is just h power n. So limit as h tends to 0 of ये सब. So natural log यानी natural log होता है cosine of so cosine power m of h, right, which is basically h power n upon m natural log of cosine h, like that. Okay, cool. So this approaches 1. That's too bad. So we need to do it like this: h power n upon m natural log of 1 plus 1 minus cosine h की पावर कुछ भी नहीं, like ठीक है ना. Yeah, that's what this is. So multiply by 1 minus cosine h over there, right, and divide by that 1 minus cosine h. और मैं इस h पावर n को यहाँ पे लिख रहा हूँ. So this is, अपने को पता है कि ये जो चीज़ रहेगी 1 प्लस कुछ तो भी जो कि 0 अप्रोच कर रहा है, अपॉन कुछ तो भी नेचुरल लॉग वो सारे, अपॉन कुछ तो भी जो कि वापस 0 अप्रोच कर रहा है. दिस थिंग इज जस्ट गोइंग टू बी अप्रोचिंग 1, यू जस्ट नो दैट. सो 1 बाय m, और ये जो चीज़ है h पावर n, you can write this thing as h power n upon 2 sine square of h by 2 square, something like that. Yeah, in basically the thing is कि you know ये जो चीज़ है, this is just somehow very much similar to 1 by 2 into h square, right? Yeah, 1 by 2 h square. So we can write this as 1 by 2 और यहाँ पर जगह h power n minus 2. So क्योंकि अपन चाहते हैं ये फाइनाइट हो, you should have n minus 2 equal to 0. So n equal to 2, और फिर अगर n equal to 2 है काट दो, so just upon 1 by 2 यानी कि ऊपर 2 चला जाएगा. This thing is equal to -1, so m is -2. There you go. Then so m is -2 and yeah, right, n is 2, m is not 2, it's -2, right? The left hand derivative, that yeah, and the left hand derivative is -1, and this just wants to be -1 as well. And what's the big deal? क्या गलत किया मैंने? सब सही तो है. n is 2, we know that, and m is -2. That's how it is. I don't know, यहाँ पे बस नेगेटिव पुट करना चाहिए मुझे. सो -2. यार मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ गलत हुआ अपना, जो कि अपने को व्हाट्स द डील. लिमिट x टेंड्स टू 1 of g of x is p. I get it, I just don't get कि ये इतना अजीब कैसे हो गया. Yeah, natural log cosine h which can be written as 1 plus 1 minus. oh नहीं, ये चीज़ ऐसे कैसे लिख सकता हूँ मैं? वो 2 माइनस कोसाइन एच हो जाएगा. सो इट शुड बी नेगेटिव ओवर देयर, राइट. और फिर ये जो चीज़ रहेगी दैट विल बी लाइक -1. सो या इनफैक्ट m is 2.
Okay, cool. Next question. Let the differential equation of a curve passing through some point be given by this thing. If the equation of the curve is written, okay, x equal to f of y, ठीक है, then f of e minus 1 is, so find x in terms of y basically. So dy is this thing. ठीक है, just y equal to that stuff. Okay, x squared, I don't know यार, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, सो वी हैव टू यूज़ दिस थिंग समहाउ, बट हाउ वुड यू इंटीग्रेट दिस थिंग? यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, वही करना पड़ेगा अपने को कि वी विल डिफरेंशिएट दिस थिंग, वी विल इंटीग्रेट दिस थिंग. सो एक्स स्क्वायर्ड ई पावर एक्स, you will first of all integrate, so e power x, okay, differentiate integrate साथ में, like this will be x and sorry क्या कर रहा हूँ मैं, 2 e power x and this will be 0 e power x, keeps on going, right? Okay, cool. So once again just plus minus and so पहले क्या होता है, अपन जो इंटीग्रेट करते हैं वो चीज़ टाइम्स ओरिजिनल चीज़, राइट? तो वो ये होगा. उसके बाद में जो या लाइक एक्चुअली ये नहीं, जो अपन ने इंटीग्रेट किया और फिर जो ओरिजिनल चीज़ थी, मतलब ये, फिर बाद में एक साइन कन्वर्जन रहेगा क्योंकि निगेटिव आता है उसमें, और फिर वापस मतलब जो अपन ने इंटीग्रेट किया वह फिर डिफरेंशियल उसका इंटीग्रेशन, फिर वो वापस वही कि इसको इंटीग्रेट करो और उसको डिफरेंशिएट करो. तो ये अगला इंटीग्रेशन और प्रीवियस ओरिजिनल चीज़, अगला इंटीग्रेशन और प्रीवियस ओरिजिनल चीज़, और फिर अगले इसमें तो ज़ीरो ही हो गया, राइट? मतलब एक्चुअल में इसी इसमें जो इंटीग्रल आया होगा वो ज़ीरो हो गया होगा, राइट? या सो दैट मीन्स ये क्या है, एक्स स्क्वायर्ड ई पावर एक्स इनफैक्ट कॉमन ले लो, सो ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू वाई, राइट? मुझे इसका इन्वर्स फंक्शन ढूंढने की कोई इच्छा नहीं है. बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि व्हेन इज़ वाई ई माइनस वन, किस एक्स की वैल्यू के लिए वाई ई माइनस वन है. तो ठीक है, ऐसे पुट कर दो ई माइनस वन, राइट? ओह बाय द वे, प्लस सम कॉन्स्टेंट यहाँ पे चाहिए, और उन्होंने कहा है कि द इक्वेशन पासिस थ्रू 0,1. सो जब x 0 है, सो लाइक 2, या ये 2 प्लस c इक्वल टू 1, सो c इज़ -1, दिस शुड बी -1. बढ़िया, तो ये कैंसिल हो जाएगा. जस्ट हैव ई पावर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो या दैट नहीं, इक्वल टू 1, सॉरी. कूल. सो थिंग इज़ कि ये तो इंक्रीजिंग है ही ऑफ कोर्स, एंड देन दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट? इन x मेक सेंस. मतलब ये इंक्रीजिंग कैसे, क्योंकि x जब पॉजिटिव है तभी अपन सोच सकते हैं ना, अगर x, ओके, क्यों ऐसा? वेट, अगर x पॉजिटिव निकला तो दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस. ठीक है, ये इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब कि ये चीज़ तो बिगर देन 1 हो जाएगी. सो दिस शुड बी बिगर देन 1. इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव. सो एक्स शुड बी लेस देन 1, राइट? दैट्स ऑल इट इज़. बट वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव अपने को नहीं पता. ठीक है, ओके, इफ एक्स इज़ लेस देन 1, व्हाट कैन यू से अबाउट द डेरिवेटिव? सो ये हो जाएगा, मतलब इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या होगा? दिस विल जस्ट बी 2x plus 2, something like that, like 2 into x plus 1, yeah, and x is less than 1, so this thing is less than 4, okay, but it's still like positive and stuff, so that makes sense. अपने को पता नहीं कि x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बट इसमें जो सारे नॉन नेगेटिव वैल्यूज दिए, सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि x पॉजिटिव है. आई नो चीटिंग, बट चलो ठीक है, करना ही पड़ता है.
सो ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, देन यू कैन क्लियरली से कि हाँ ये इंक्रीज इन फंक्शन है वगैरह. सो बस अपने को एक गैस करना है इसमें. सो आई थिंक एक्स इक्वल टू 1 विल प्रॉब्ली वर्क, क्योंकि वो देगा अपने को 1 × नहीं 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 नहीं, एक्स इक्वल टू 1 वोंट वर्क. ओके, ई स्क्वायर, ये कैसा, नहीं दैट्स नॉट राइट. ज़ीरो भी काम नहीं करेगा यार. क्या गलत किया अपन ने. देन एफ ऑफ ई -1, राइट. सो कोई तो ये वाई वैल्यू के लिए तो हमें एक एक्स वैल्यू मिलती है, तो हमें ई -1 के लिए क्या एक्स वैल्यू चाहिए रहेगी, ऐसा ही पूछ रहे हैं ना ये. एंड वी डिड दिस करेक्टली एज वेल. लाइक शिट, माइनस, ये माइनस मैंने छोड़ दिया इसलिए सब कुछ हो रहा है. फिर तो ये बहुत अलग हो जाएगा. सो द थिंग इज़, ये अपने को पूछ रहे ई पावर x -1 × x -1 का स्क्वायर +1 व्हेन इज दैट इक्वल टू 0. राइट, एक काम करो, x -1 को u बोल दो. सो दिस इज मोर लाइक ई पावर u × u स्क्वायर +1 व्हेन इज दिस इक्वल टू 0. सॉरी 0 नहीं, 1. 1. यू कैन क्लियरली सी कि u जो है वो नेगेटिव होना चाहिए. या राइट. एंड व्हाट डज दिस गिव अस तो, u नेगेटिव है, सो जिसके बाद u स्क्वायर +1 इक्वल टू ई पावर नेगेटिव u. अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2u वर्सेस यहाँ पे आएगा नेगेटिव ई पावर नेगेटिव. सो यहाँ पे तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है. दैट्स अ प्रॉब्लम. ओके कम ऑन, थिंक. आई नो अपने को सिर्फ एक गैस करना है, बट लाइक रियली. अच्छा, u इक्वल टू 0 ऑब्वियसली वर्क्स, so we can say x equal to 1 works, yeah, but it's not a proof. Next question. Let f of x be equal to this thing where this denotes the greatest integer less than or equal to x. If a and b denote the domain and range of f of x respectively, then the number of integers in a union b. ठीक है, so you just want domain and range of f of x where this is that. Okay, sine inverse of integer of x plus tan inverse of integer of x plus cot inverse. ये चीज़ तो क्लियरली तुम देख रहे हो π/2 है, so it's just 2/π into π/2 plus साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग. इसकी जो डोमेन है, लाइक ये चीज़ क्या हो सकती है, 1 0 और -1. तो तुम्हारी डोमेन क्या हो गई फिर. या इट्स लाइक यू कैन गो फ्रॉम -1 ऑल द वे टिल 2 बट नॉट इंक्लूडिंग इट, क्योंकि तब तो वो 2 हो जाएगा. सो ये तुम्हारी डोमेन है आई थिंक, और तुम्हारी रेंज क्या है, 1 + 2/π साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग. मैक्सिमम वैल्यू इस चीज़ की π/2 होती है, मिनिमम नेगेटिव π/2. ये दोनों अपन अप्रोच कर सकते हैं. सो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1 + 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 2. द नेगेटिव 1 इसमें डाल दूंगा तो फिर 0. So range is this thing, domain is this thing. Okay, then the number of integers in A union B. So ये चीज़ यूनियन ये चीज़. Okay, cool. This is just -1 to 2 included basically. Makes sense. Okay, which मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, -1 0 1 2 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. एरिया ऑफ द फिगर बाउंड बाय द कर्व, दिस कर्व दैट कर्व, एंड द वाई एक्सिस इज इक्वल टू a. वाई एक्सिस, okay, for what set of values of a there will always exist a corresponding value of. ओके ठीक है. सो बेसिकली पूछ रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए तुम कैपिटल ए निकालो. या और फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे. सो अगर इसको ग्राफ करने का ट्राई करूँ, a√x, यहाँ पे तो 0 रहेगा, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस, और √1 - x इनिशियली 0 पे स्टार्ट नहीं, इनिशियली 1 पे स्टार्ट होगा, राइट. और फिर बाद में
जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा दिस विल डिक्लाइन. या सो दिस इज़ व्हाट इट्स गोना लुक लाइक, समथिंग लाइक दिस. मतलब 1 के पास में रहने का ट्राई करेगा. ओके कूल. सो यहाँ पे कहीं तो भी इसका इंटरसेक्शन है. सो इंटरसेक्शन कहाँ पर है? दैट इज़ व्हेन यू हैव a स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, ये वाला पॉइंट, राइट. और बेसिकली अपने को ये निकालना है. सो जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ये कर्व कौन सा वाला है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. ओके, माइनस दूसरा वाला कर्व विच इज़ a square root of x. It goes from 0 to this x value which is 1 upon a square plus 1, right? Cool, let's try to find this. So this is integration from 0 to 1 upon 1 plus a square of square root of 1 minus x minus square root of a square root of x. Cool. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर यहाँ पे मुझे नेगेटिव मिलेगा एंड इट्स जस्ट द पावर ऑफ 1/2. सो प्लस 1 3/2, इसका हो जाएगा 2/3 ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 बट इन नेगेटिव. ओके, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 2/3 a एक्स की पावर वंस अगेन जस्ट 3/2, राइट. एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1 upon 1 plus a square. दिस इज़ मोर लाइक इनको पॉजिटिव कर दो और इसको स्विच कर डालो. सो इट्स from 1 upon 1 plus a square, say 0. Okay, cool. When you put 0 in this thing, you just get 2/3, right? And when you put 1 upon 1 plus a squared, you get 2/3 तो रहेगा ही वहाँ पे. So 2/3 of, let's look at this, 1 minus ये चीज़, that is a squared upon 1 plus a squared, right? So 2 a power 3 upon 1 plus a squared की power 3/2. और ये तो 2 तो गया ना यार, सॉरी. देन दिस इज a अपॉन, राइट, या ओके, a अपॉन 1 plus a squared power of 3/2 like that. So it's 2/3 minus 2/3 ऑफ, तो मैं अगर मैं a कॉमन ले लूँ इसलिए 1 plus a squared तो वही कटेगा. सो जस्ट हैव a upon square root of 1 plus a square. Cool. This is 2/3 into 1 minus a upon square root of 1 plus a square. ओके, तो बेसिकली इसकी रेंज क्या रहेगी? क्योंकि ये चीज़ a है तो a की रेंज क्या है? a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर. a कोई तो भी नंबर है जो कि बिगर देन 0 है. या व्हेन यू पुट 0 ओवर देयर यू गेट मैक्सिमम, और जब ये चीज़ मैक्सिमम होगी यू विल गेट मिनिमम. सो मैक्सिमम वी नो इज़ जस्ट 2/3. ओके, और मिनिमम कैसे रहेगा? जब ये चीज़ मैक्सिमम हो, और वो कब होता है? व्हेन यू हैव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं उसको अंदर ले आऊँ, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, राइट. या जब ये चीज़ मैक्सिमम रहेगी, मतलब कि ये चीज़ मिनिमम रहनी चाहिए. अरे यार, ये चीज़ अगर मिनिमम रहनी चाहिए मतलब कि a स्क्वायर मैक्सिमम, राइट. सो लाइक a इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट शुड मेक सेंस. a इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देगा इसमें. या सो ये चीज़ 1 अप्रोच कर लेगी एंड दैट विल जस्ट गिव अस 0. सो इट्स गोइंग फ्रॉम 0 to 2/3 लाइक दिस. या ओ अच्छा, a स्ट्रिक्टली बिगर देन 0 है, सो अपन 0 पुट नहीं कर सकते. जस्ट राउंड ब्रैकेट. This is the correct thing. Okay, next question. If a, b, c are real, then the value of this determinant is 1. If, okay, you know, really, एक काम करो, स्पेशल केसेस ट्राई करते. लेट्स जस्ट से a और b दोनों को 0 पुट कर देंगे और देखेंगे कि c की कौन सी वैल्यू के लिए 1 होता है. या वी कैन डेफिनेटली डू दैट. अच्छा, a b c अगर तीनों मैंने 0 पुट कर दिए तो ऑब्वियसली ये 1 होता है. तो ये तो मतलब ऑब्वियसली ट्रू है. कूल. कोई और भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जो कि ज़्यादा जनरल हो और फिर वो ट्रू हो जाए, मे बी.
अच्छा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सो लेट्स से कि a और b -1 है, नहीं एक काम करो, a को 0 रखो, b और c 1 और -1 है, सो दिस विल बी 1 2 2, राइट, एंड a की जगह पे 0 रखा तो फिर सब कुछ 0 हो रहा है, एंड बी सी विल बी -1 लाइक दिस, सो दिस विल बी 4 प्लस नहीं -1 विच इज़ 3, एंड दैट्स नॉट करेक्ट, सो ये कंडीशन सही नहीं है, और ये भी ऑब्वियसली सही नहीं क्योंकि फिर ये काउंटर एग्जाम्पल होता था उसका, राइट, सो या दिस इज़ द करेक्ट थिंग, आई नो चीटिंग है ये, स्पेशल केसेस से ट्राई कर रहे हैं अपन, बट लाइक टाइम कम है, सो इट्स ओके, फॉर अ गेम इन विच 2 partners oppose 2 other partners, 8 men are available, okay, if every possible pair must play with every other pair, the number of games played is, ah, okay, cool, number of games played is, राइट, so बेसिकली एक गेम क्या रहता है कि हमारे उसमें ए और बी 2 टीम्स है 2 लोगों की, राइट, हाँ, एंड दैट विल बी अ गेम, बट इनफैक्ट ए और बी अगर अपन एक्सचेंज भी कर दें, सो दैट विल ऑल्सो बी द सेम थिंग, तो एक काम करते हैं, पहले ऑर्डर्ड पेयर सारे ढूंढ लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर डालेंगे, या क्योंकि एग्जैक्टली 2 ट्वाइस एज मैनी अपन चीज़ें गिन रहे हैं, राइट, एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, राइट, यू नो कि वो ए का बी और बी का ए होने से 2 बार ही रिपीट होता है, ओके, सो लेट्स डू दिस थिंग, पहले के लिए अपने को 2 लोग चूज़ करने हैं इनमें से, सो 8C2, राइट, और फिर बचे हुए के लिए अपन लाइक 6C2 ऐसे 2 लोग चूज़ कर लेंगे, और दैट थिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट शुड बी नंबर ऑफ गेम्स आई गेस, हाँ, नहीं ये कैसे, ये तो नहीं हो सकता, राइट, अपने को सिर्फ चूज़ करना है, सो कम ऑन थिंक, 8C4 इंटू 3 8C, चलो ये दोनों तो अपने को समझ गए कि गलत है, सो प्रॉबेबली सिर्फ ये वाला है जो कि सही हो सकता है, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस देन, सो 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2 अपॉन 2, राइट, ये हो जाएगा 4, एक्चुअली रहने दो इसको, सो दिस इज जस्ट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 8 बेसिकली, बट ये क्या हो गया, ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 8 विच इज़ 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 8, 4 फैक्टोरियल इज जस्ट 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट, सो इट्स 8 इंटू 3, it is in fact this thing. Next question, number of integral solutions of this equation where this denotes the greatest integer less than or equal to x and signum f x denotes the signum function, ठीक है, number of integral solutions of this equation, signum of this guy is 1, मतलब कि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, so just want sin inverse of is bigger than 0, बस ये चीज़ या तो 0 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है, जो कि दोनों काम नहीं करते, या फिर ये 1 हो सकती है, so the only thing that they are saying is pi x upon 6, this thing should be 1, that's the whole thing, right, which means pi x upon 6, this is bigger than or equal to 1 less than 2, isn't that right? That means 6 by pi is less than or equal to x, bigger than or, sorry, less than 12 upon pi, right, ये सही नहीं हुआ, 6 is less than or equal to pi x is less than 12, राइट, ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है,
लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ x इक्वल टू 1 जो कि काम नहीं करता है, x इक्वल टू 2, सो 2 वर्क्स देन 3 वर्क्स देन 3 काम करेगा क्या, या 4 4 नहीं करेगा क्योंकि 4 इंटू समथिंग बिगर दैन 3 दैट्स नॉट लेस दैन 12, सो या 2 एंड 3, बस यही दो सॉल्यूशंस है इसके. There's only 2 solutions. Weird. Next question. If a and b be two non-collinear unit vectors such that this is that, then the value of this thing is equal to a cross b equal to a minus b upon 2. इसका मॉड हर जगह पे काम करो, उनके बीच का एंगल जो है वो साइन थीटा पुट करो. सो दिस इज जस्ट साइन थीटा का मॉड equal to, so this will be like square root of a का square 1 plus b का square 1 once again, so minus 2ab, okay, 1 1 minus 2 cosine theta upon 2, right, which is square root of 2 minus 2 cosine theta, which is square root of 4 sine square theta by 2. So this is just sine of theta by 2 basically, mod of course. So this is more like, I don't know, इसको उधर भेज दूंगा. So 2 mod of cosine theta by 2 minus 1 into mod of sine theta by 2, this thing equal to 0. So एक तरीका हो सकता है कि थीटा साइन थीटा बाई 2 0 हो जाए, दूसरा तरीका हो सकता है इसको साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, या राइट. एंड यू नो जो थीटा है दैट गोज फ्रॉम 0 to पाई probably, so theta by 2 is less than pi by 2, which means we can write this as like without mod. So एक तरीका है कि ये जो चीज़ है वो 0 हो जाए, मतलब कि थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि वो पाई तो नहीं हो सकता. थोड़ा सा अजीब है क्योंकि वो उन्होंने बोला कि नॉन कोलिनियर चाहिए अपने को. और दूसरा तरीका है कि कोसाइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, यानी कि 60 डिग्रीज हो जाएगा थीटा बाई 2, सो थीटा शुड बी इक्वल टू 120 डिग्रीज बेसिकली. या मेक्स सेंस आई गेस. ओके, देन द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर. ओह गॉड, ठीक है, तो a क्रॉस कुछ तो भी जो कि a से परपेंडिकुलर है, क्या लगता है कमेंट क्या रहेगा. ऑब्वियसली इट्स जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ये तो 1 है, और ये चीज़ क्या है, साइन थीटा है, साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ 120 डिग्रीज, विच इज स्क्वायर रूट 3 बाई 2, उसका स्क्वायर ऑब्वियसली, सो 3 बाई 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट, so basically 1 minus e power y upon 1 plus e power y equal to x. Okay, and f of, okay, 2 times of f of a equal to f of 2a upon 1 plus a square. पहले तो अपने को y ढूंढना पड़ेगा in terms of x, right? Maybe not. And a must lie in. Okay. डू यू रियली थिंक कि अपन को y ढूंढना चाहिए? चल ठीक है ना, ट्राई करते हैं. 1 माइनस ई पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स ई पावर वाई, वहाँ से जाएगा ई पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स. ओके, सो लेट्स जस्ट से कि y ऑफ a इक्वल टू y ऑफ b, सपोज ऐसा होता है, देन ऑब्वियसली ई पावर y ऑफ a इक्वल टू ई पावर y ऑफ b, मतलब कि 1 माइनस a, यहाँ पे ये चीज़ x वैल्यू जैसा 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस b, सॉरी 1 प्लस a इक्वल टू 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस b, राइट. सो वहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इट्स जस्ट 1 माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस ए बी माइनस बी प्लस ए. देयर यू गो, कैंसिल हो गया. सो यहाँ से बेसिकली क्या निकल रहा है, b इक्वल टू ए. ओह वियर्ड. अच्छा, यहाँ पे पूरा थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन था, राइट. यहाँ पे 2f ऑफ a इक्वल टू दैट. सो एक काम करो ना, ई पावर वो चीज़ बोल दो. सो ई पावर f ऑफ a का स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू
एफ ऑफ ये चीज़, सो ई पावर वो मतलब दैट विल जस्ट बी 1 minus 2a upon 1 plus a squared upon 1 plus 2a upon 1 plus a squared, like that, which is a minus 1 ka square upon a plus 1 ka square, which is exactly this thing. So a can be anything. Yeah, literally it can be anything. Okay, a cannot be, I don't get it. Right, we just got this thing. अच्छा हाँ, सो यहाँ पे नेचुरल लॉग वगैरह लिखा ना, सो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स शुड बी पॉजिटिव. तो वो कब होगा? व्हेन यू हैव एक्स, इसको एक्चुअली उल्टा लिखोगे, सो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज नेगेटिव, सो एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1. दिस शुड हैपन, एल्स ये पूरा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. राइट. सो इसका मतलब है कि a बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड एट द सेम टाइम 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर बिलोंग टू -1 अपॉन 1. अगर मैं 1 प्लस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ जिसका है 2a लेस देन 1 प्लस a स्क्वायर एंड बिगर देन -1 -a स्क्वायर, मतलब नेगेटिव ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर is less than 0 and a minus 1 squared bigger than 0, which is like very obvious क्योंकि ऐसा है. सो या दैट मीन्स कि 1 और -1 इनफैक्ट तुम नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो प्रॉब्लम देंगे. सो इट इज़ इनफैक्ट फ्रॉम -1 to 1. वियर्ड, बट दैट्स हाउ इट इज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रूट्स ऑफ दिस थिंग आर इन जी, मतलब नहीं, मैं टेस्ट नहीं करूँगा इसको. इफ द रूट्स ऑफ दिस थिंग आर इन जी पी देन द वैल्यू ऑफ के इज, ओके, रूट्स आर इन जी पी, उनका मल्टीप्लिकेशन 8 है, मतलब कि मिडल रूट जो है वो 2 रहेगी. सो इज लाइक दीज आर द रूट्स बेसिकली, और उनका ओके वो दिए. सो 4 अपॉन आर प्लस 4r प्लस 4 इक्वल टू 14, यहाँ से 10 हो जाएगा ये. दिस इज़ बेसिकली 2 plus 2r squared equal to 5r. Okay, 2r squared minus 5r plus 2 equal to 0. So 2r squared minus 4r minus r plus 2 equal to 0. r minus 2 into 2r minus 1 equal to 0. So r equal to 2 or 1 by 2 basically. So yeah, you got the roots. नहीं, ये कहाँ पे रूट्स है? सॉरी, रूट्स क्या हो गए? 2 4 1, ये रूट्स है अपने. राइट. वैल्यू ऑफ के इज, इनका एडिशन क्या होता है? 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आई जस्ट व्हाट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज लाइक 1 माइनस साइन फाइव का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 कैंसिल हो जाएगा. सो प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ 5. ये चीज़ एक्सपांड करने पर मुझे मिलेगी 1 माइनस 2 साइन ऑफ 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस कोसाइन स्क्वायर 5. ये चीज़ तो 1 हो जाएगी. दिस विल बी 2. दिस विल जस्ट बी 2 into 1 माइनस ऑफ साइन 5, राइट. देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? दैट्स व्हेन यू हैव साइन 5 इक्वल टू -1, तो वो रहेगी 2 into 2 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. The DE of all circles, differential equation of all circles passing through the origin and having x-axis as diameter, passing through origin and having x-axis as diameter. क्या घटिया क्वेश्चन है यार ये. इसको बस x कॉमा, इसको x0, 0 बोल दो. इसके लिए तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों चाहिए? ओके, आई डोंट नो. तो x माइनस x0 y, sorry, x minus x0 into x minus 0, which is just x, plus y squared equal to 0, something like that. Yeah, it's just x squared minus
x naught plus y squared equal to 0. That is the equation, and we just need to eliminate this x naught thing. Yeah, so in fact x से divide कर दो, this will be x plus y squared upon x is x naught, और फिर डेरिवेटिव ले लो एक. सो विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोर्स, so 1 प्लस 2y m यानी कि डिवाइड बाई डी एक्स है. सो 2y m इंटू एक्स माइनस नीचे का डेरिवेटिव 1 है, सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. ये उधर भेजो, -1 हो जाएगा, और फिर वो करने पे मुझे मिलेगा 2y mx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -x स्क्वायर. या राइट, और इससे क्या होगा, 2y mx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर. अच्छा, अपने को डायरेक्टली डिवाइड बाई डी एक्स इन टर्म्स में लिखना है. सो एक काम करो, 2xy से डिवाइड कर दो. सो m प्लस या लाइक ओके m इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy बेसिकली, राइट. यानी कि m प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इक्वल टू 0. यू गेट इट. Next question, yes, if the locus of the midpoint of a chord of the circle plus y squared equal to 4, ऐसा कुछ भी सर्कल है, उसकी एक chord है, locus of the midpoint, okay, which subtends a right angle at the origin. अच्छा, ये जो chord है वो right angle subtend कर रही है origin पे, फिर इस चीज़ का locus क्या है, बस वो distance ढूंढ लो ना यार. So we know it's going to be r upon square root 2. So yeah, like what, r squared by 2 put karo in place of r squared, so this will just be x squared plus y squared equal to 2. Next question, the angle between the tangents drawn from this point to this ellipse to this ellipse is ठीक है. सो एक काम कर सकते हैं ना अपन कि इसको पहले तो ओके एंगल्स व्हाट आई वांट की इज इसकी तुम इसको पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उल्टी करो, जो कि जनरली लगाते हैं एलिप्स क्रिएट करने के लिए, और फिर तुम स्लोप निकालने के बाद में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वापस लगाओ, तो अपन स्लोप बेसिकली अपने को दोनों स्लोप्स मिल जाएंगे, जस्ट लाइक दैट. सो लेट्स ट्राई दिस. एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन वाई स्क्वायर्ड अपॉन वाई स्क्वायर्ड अपॉन 3 इक्वल टू 1. ये अपना इक्वेशन है, राइट. एंड कोई और भी तरीका होगा ना, या राइट, अपन वो भी रेडीमेड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं ना. सो यू नो कि हमारे पास में एक रेडीमेड फार्मूला है, विच इज़ y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. ये फार्मूला है टेंजेंट का फॉर एन एलिप्स. सो अपने को सिर्फ स्लोप्स निकालने हैं इसमें. बेसिकली क्या हो जाएगा, y माइनस एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपने को y और x पता है, x इज जस्ट स्क्वायर रूट 7 एंड y इज़ 1. सो 1 माइनस एम स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आई नो दिस इज हाउ इट इज. एंड ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने को पता है जस्ट 5 and 3. So putting that there, okay, this will be 1 minus 2m square root 7 plus 7m squared equal to 5m squared plus 3. So यहाँ से आ जाएगा 2m squared minus 2m square root 7 minus 2 equal to 0, यानी कि m squared minus square root 7m minus 1 equal to 0. So यहाँ से अपने को m की वैल्यूज़ मिल जाएगी, राइट. अपने को उनसे काम भी नहीं करना, अपने को सिर्फ चाहिए एंगल विच इज़ लाइक m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का tan इनवर्स. वी कैन फाइंड आउट व्हाट दिस वैल्यू इज. सो दिस इज लाइक tan इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस विल जस्ट बी स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 विच इज़ स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर. यस, राइट. सो m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2 विच इज दिस थिंग लाइक दिस प्लस 4, या अपॉन 1 माइनस शेट. ओह नो, ये जो चीज़ है ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, मतलब कि ये एक वर्टिकल लाइन है प्रोबेबली, सॉरी वर्टिकल यानी कि ये एंगल जो है वो पाई बाई 2 है, या
वर्टिकल लाइन क्यों बोल रहा हूँ, ये लाइन नहीं है, एंगल्स की बात करें अपन. सो या दिस इज लाइक π/2 probably. So that means it's. The next question. Lot A consists of 3G and 2D articles. Lot B consists of 4G and 1D articles. A new lot C is formed by taking 3 articles from A and 2 from B. The probability that an article at random from C is defective. G और D यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? मे बी लाइक D डिफेक्टिव के लिए है और G क्या है? गुड मे बी. सो 3 गुड और 2 डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं ए में. बी में 4 गुड और 1 डिफेक्टिव है. ओके. सी में 3 आर्टिकल्स है और ए से और 2 आर्टिकल्स है बी से. ओके. द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्टिकल चूजन एट रैंडम फ्रॉम सी इज डिफेक्टिव. ओह गॉड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ केसेस जिसमें दिस इज बैड. ठीक है, जो सारे अरेंजमेंट्स रहेंगे वो इक्वली लाइकली रहेंगे, राइट. एंड बाय अरेंजमेंट्स एक काम करो ना, 3G है तो उसको मैं G1 G2, राइट. सो लाइक G1A G1 मतलब गुड आर्टिकल, सेकेंड B, सॉरी सेकेंड A गुड आर्टिकल, 3A, इस टाइप के नाम दे देते हैं उनके. ओके. सो या लाइक 3 आर्टिकल्स चूज करने अपने को ए से. अच्छा, पहले तो ये सोचते हैं कि टोटल सैम्पल स्पेस अपने को क्या कंसिडर करनी है. लेट्स कंसिडर ऑल दी केसेस वेयर यू फॉर्म लाइक सेट सी, राइट. सेट सी में जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे अपन कंसिडर कर लेंगे, राइट. नहीं यार, नहीं वो सही नहीं रहेगा. This is complicated. 3G and 2D articles. So ये probability अपन कैसे निकाल सकते हैं? You can obviously go by multiplying probability. So एक पर्टिकुलर सेट, एक पर्टिकुलर लॉट सी क्रिएट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो अपन देख सकते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करो बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि उसमें या वो अपन कर सकते हैं. सो कूल. लेट्स जस्ट स्टार्ट ट्राइंग. So you can have like all of them like great articles from A और फिर सारे के सारे गुड आर्टिकल्स, राइट. तो उसमें प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी. फिर बाद में मे बी तुम 2 गुड आर्टिकल्स G1 G2 लोगे ए से और एक लाइक D1 लोगे और फिर उसमें तो कुछ तो प्रोबेबिलिटी रहेगी. या आई नो हम ऐसे लिस्ट आउट करके सब कुछ ऐड तो कर सकते हैं बट दिस इज़ नॉट, मतलब इफेक्टिव नहीं है ना वो. क्या लिस्ट आउट कितने करोगे? लेट्स कंसिडर कि कि नहीं, रुको. तो प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी है, राइट. और सारे लाइकली है, इक्वली लाइकली है. G प्लस 2D में 3 आर्टिकल्स तो कंसिडर करने हैं. काम करो, जितने भी तुमने ग्रीन आर्टिकल्स फ्रॉम ए लिए हैं उसको एक्स बोल देते हैं, राइट. सो उसमें एक्स नहीं वो सही नहीं है.
मैं क्या कर, मैं सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ इसमें ना, मैं जनरेटिंग फंक्शन इसमें सोच पा रहा हूँ किस टाइप से जनरेट करेंगे। यू नो व्हाट, लेट्स ट्राई कि 1/5 प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए टी की, मतलब कि ए की टी चाहिए आउट ऑफ 5, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे, वैसे कितने केसेस जनरेट हो सकते हैं, वैसे कितने केसेस जनरेट हो सकते हैं। अरे यार, अपन को दो अलग अलग लॉट्स जैसे क्यों सोचे। ओके हाँ, सोचना पड़ेगा क्योंकि अपने को उनमें से स्पेसिफिक नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए। हाँ शिट, ठीक है सोचो। ए की चाहिए तो एक काम करो ना, ए से जो आर्टिकल्स आए हैं वो पहले 1 और फिर 0, राइट। ए से एक डिफेक्टिव आर्टिकल आया, फिर 0 आया, सो वो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, दैट प्रोबेबिलिटी नहीं, उतने केसेस कितने रहेंगे। 3 आर्टिकल्स अपने को चूज़ कर दें, उसमें से एक आर्टिकल डिफेक्टिव होना चाहिए फ्रॉम ए, दैट मीन्स 2 फॉर द डिफेक्टिव थिंग एंड या लाइक 2C1 एंड देन 3C2, राइट, बचे हुए। ओके, और फिर बी में से 0 आनी चाहिए, सो 4C3, राइट। फिर बाद में हो सकता है कि 0 और 1 रहे, सो उसके लिए जस्ट 1 2C, डिफेक्टिव में से 0 चाहिए अपने को और गुड में से चाहिए तीनों के तीनों, और यहाँ पे जाएगा 4C। ओके, पहले तो यहाँ पे चाहिए 1C0 एज वेल, यहाँ पे चाहिए 1C1, 4C2, लाइक दैट। वेट, अपने को सी में से सिर्फ 2 चाहिए ना, सॉरी बी में से 2 चाहिए, राइट। सो 4C2 होना चाहिए फिर यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। तो ये होगा अगर एक डिफेक्टिव आर्टिकल हो। व्हाट इफ तुम्हारे पास में 2 डिफेक्टिव आर्टिकल्स आ गए इन बी, वो प्रोबेबिलिटी, सॉरी वो केसेस कितने हो गए। सो ये है एक के लिए, अगर पास में 2 आ गए हैं, सो वी कैन स्टार्ट कि तुम ए में 2 रखते हो, राइट, 2 डिफेक्टिव आर्टिकल्स, सो 2C2, 3C0, राइट, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 4C2, 1C0, राइट। फिर हो सकता है कि तुमने 1 and 1 रखे, या राइट, और इसमें तुम 2 तो रख ही नहीं सकते हो, सो एट मैक्स इसमें एक डिफेक्टिव आर्टिकल होगा, सो उसके केसेस ही नहीं आएंगे, राइट। या दिस प्रॉब्ली मेक्स मोर सेंस। हाँ, सो ये सारे जो केसेस हैं, लाइक ओके, अब पहले तो 1 का सोच लेते हैं, इसमें हो जाएगा 2C1, राइट। वी नो कि एट मैक्स 3 डिफेक्टिव आर्टिकल्स हो सकते हैं बी में। ओके, सो इसके लिए हो जाएगा 2C1, 3C1 एज वेल। अपने को एक गुड आर्टिकल चाहिए और उसमें एक ही डिफेक्टिव आर्टिकल चाहिए, जस्ट 4C1, 1C1, ओके। और फिर हो जाएगा 0 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और लास्ट में रहेगा व्हेन यू हैव लाइक 3 डिफेक्टिव आर्टिकल्स, सो उससे कितनी रहेगा, मतलब तुम्हें यहाँ पे 2 and 1 ये एक कंडीशन मिलने वाली है, दैट विल बी 2C2 and 3C1 आई थिंक, राइट। यहाँ पे 3C1 कैसे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, वेट, बट ये 2 कैसे, यहाँ पे 3C1 चाहिए था, सॉरी, या दैट शुड बी करेक्ट, और यहाँ पे 2 चाहिए था। Okay, cool. So, right, we got the number of cases. All right. फिर इन सबको अपन सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर डालेंगे, लाइक दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी कि इस पूरे नंबर ऑफ केसेस में से कुछ तो भी एक केस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट, कि
एक सिलेक्टेड केस, या नहीं, कैसे कैसे बताऊँ मैं कि ये जो कंडीशन है कि तुम्हारे पास में एक डिफेक्टिव आर्टिकल आया सी में, सारे जो केसेस जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो केस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट विल बी दिस कंप्लीट नंबर ऐड किया हुआ अपॉन दी टोटल सैम्पल स्पेस, राइट। तो वो प्रोबेबिलिटी टाइम्स प्रोबेबिलिटी की, या और लाइक दिस टाइम्स व्हाट, दिस टाइम्स ये 1 के लिए ना, सो 1/5, और ये हो जाएगा 2/5, एंड दिस विल बी 3/5 लाइक दैट। कूल कूल, गॉट दिस थिंग। बहुत ही अजीब है, बट आई डोंट नो यार, ये चीज़ कैसे कोई कैलकुलेट करेगा। ओके, फिर इसको डिवाइड करो टोटल सैम्पल स्पेस से। सैम्पल स्पेस तुम कैसे निकालोगे, या लाइक 3 इसमें से निकालना है, सो जस्ट 5C3, और B से तुम्हें क्या निकालना है, 4G1D, राइट। ओह बाय द वे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 0 अगर चाहिए तो फिर इतने तरह से, सो मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, मल्टीप्लाइड बाय दैट, राइट। और 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C2, दैट इज़ अ सैम्पल स्पेस बेसिकली, राइट। तो अपनी को अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे यार। Okay, 2C1, 3C2. Come on, just calculate this thing. So 2C1 is 2, 3C2 is just 3C1, which is 3. Then 4C2, that thing is 4 into 3/2, which is 6. And then 6 into 1, right? 1C कुछ भी रहेगा वो तो 1 ही रहेगा, so ये सब नहीं चाहिए अपने को। ओके कूल। ओ बाय द वे, लाइक 1 तुम्हें चाहिए तो उसका एक ही तरीका हो सकता है ना, या ओके, तो दैट्स नाइस। थिंक अबाउट दिस वन, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सॉरी, एंड दिस थिंग इज 4, सो इसके लिए 4, राइट। ओके, दिस गाय इज 1, 3C1 is 3, 3 into 4C2, which is 6, right? Okay, and then 2C1 is 2, 3C2 is 3, so it should be 6, and 4C1 is 4, so 6 into 4. Okay, 2C2 is 1, 3C1 is 3. Okay, cool. ये सब हटाओ, and this will be 6 into 7 basically, so 42. आई नो प्रॉबेबली मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दी होगी अभी तक। स्टिल लाइक तुम इसको इफेक्टिवली कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ओके, 2 into 3, 6 into 6 यानी कि 36, सो दिस इज 36, और 36 plus 4, दैट शुड गिव अस 40। ओके कूल, राइट। और ये चीज़ क्या होती है, 5C2 का स्क्वायर बेसिकली, राइट। सो दैट्स जस्ट 5 into 4/2, यानी कि 10 स्क्वायर इज 100, दिस थिंग इज 100। ओके कूल, सो लेट्स स्टार्ट 40/100। अच्छा ठीक है, एक काम करो, नहीं पहले 1/5 वगैरह वो सब ले लेते हैं। सो 1 into 40 प्लस 2 into 42, which is 84, yes, plus 3 into 3, 9/500. This is probably the probability. So this is 93. 93 plus 40 is 133/500. ये कैसे आखिर, आई डोंट नो। और ये लाइक मुझे नहीं लगता ये रिड्यूस और होगा, या इट्स बेसिकली नन ऑफ दीज। वाह, बहुत घटिया था ये। नो, या जस्ट लेट इट बी।
Whatever, I'll see you guys in the next video.